Hello, good evening. In the previous session, we knew about System Development Lifecycle, that is SDLC. In SDLC, the first phase is preliminary investigation. In this session, we shall know about preliminary investigation in detail. So, as you remember, that these are the phases of SDLC: preliminary investigation, analysis, design, coding, testing, implementation, evaluation, and maintenance. Sorry, design spelling of design is wrongly written. तो ये SDLC के 8 फेजेस हैं. पहला फेज होता है प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन. जब भी कोई हम नया प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की बात करते हैं तो पहले हम ये देख लेते हैं कि क्या यह प्रोजेक्ट करने लायक है. करने लायक इन द सेंस कि क्या हम इसको कर सकते हैं, हमें वो टेक्निकल स्किल, टेक्निकल एबिलिटी है, क्या हमारे पास वो टेक्निकल सामान है जिससे हम इस प्रोजेक्ट को कर सकते हैं. और प्रोजेक्ट हो जाने के बाद, सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद, इम्प्लीमेंट हो जाने के बाद क्या यूज़र इसको यूज़ करेगा, यूज़ कर पाएगा. सो in preliminary investigation, we study the problem in brief, not in detail, but in brief, because detailed studies have to be performed in the further phases. बस हमें यहाँ ये जांचना है, ये स्टडी करके ये पता करना है कि क्या ये प्रोजेक्ट की जा सकती है, इस प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट किया जा सकता है या नहीं. किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट हो, ब्रिज का प्रोजेक्ट हो, कोई भी प्रोजेक्ट हो, रोड बनाने का प्रोजेक्ट हो, एवरीवेयर a preliminary investigation is conducted just to check whether the project, the work could be undertaken or not. So, while performing SDLC, System Development Lifecycle, developing a software, the first phase is preliminary investigation, and after the report of preliminary investigation, we check whether we should accept the project or reject the project. If the project is rejected, in that case, what happens? The project is closed. These steps, these phases are not conducted. Project is closed. That's all. So these steps only follow only when the project is accepted in this preliminary investigation phase. So we are going to study in detail the preliminary investigation phase. So this is the first step of SDLC to determine the feasibility of the system. Feasibility means whether we should accept the project or not, whether the project is worth doable or not, करने लायक है या नहीं है. It is the brief study of the problem of the organization after the project request that might arise from many sources, and to determine whether the problems are really to be addressed and the project should be undertaken. ये एक ब्रीफ स्टडी है प्रॉब्लम का, ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉब्लम का, जिसमें हम ये डिटरमिन करते हैं, ये डिसाइड करते हैं कि इस प्रॉब्लम को एड्रेस करना हमारे लिए रियली ज़रूरी है और प्रोजेक्ट अंडरटेक करना हमको ज़रूर करना है. सो द पर्पस ऑफ this preliminary investigation is to determine whether there really exists any problem or deficiency in the current system. That is to evaluate project request. ये जो request आया है उसको हमको evaluate करना है, उस request को, कि really हमको ये काम शुरू करना है या नहीं करना है. To make a to do or not to do decision. Okay. Thus, it is a process of collecting information that helps evaluate the merits of the project request and make an informed judgment about the feasibility of the proposed project. From where it initiates? कहाँ से शुरू होता है? तो ये शुरू होता है प्रोजेक्ट रिक्वेस्ट से. That may be made from
ओनर ऑफ द सिस्टम, कंपनी का मालिक, कंपनी का ओनर डिसाइड कर सकता है, गवर्निंग बॉडी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स डिसाइड करता है कि वी शुड अंडरगो अ प्रोजेक्ट। कोई मैनेजर, डिपार्टमेंटल मैनेजर, जनरल मैनेजर, कोई मैनेजर रिक्वेस्ट कर सकता है, एम्प्लॉयज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉयज के डिमांड पर हो सकता है, और सिस्टम एक्सपर्ट्स और स्पेशलिस्ट में सजेस्ट दैट यू शुड अंडरटेक द न्यू प्रोजेक्ट। So when that request is met, then the first system activity begins, which is known as preliminary investigation. In Hindi, it is called Prarambhik Janch. Preliminary investigation means Prarambhik Janch. So analysts should accomplish following objectives: clarify and understand the project request, determine the size of the project, access costs and benefits of alternative approaches. अगर कोई अल्टरनेटिव अप्रोच है तो उसके कॉस्ट बेनिफिट्स को हम असेस करेंगे। डिटरमिन द टेक्निकल एंड ऑपरेशनल फिजिबिलिटी ऑफ अल्टरनेटिव अप्रोचेस। सॉरी, इट इज रॉन्गली स्पेल्ड ASSESS. It should be ASSESS. So determine the technical and operational feasibility of alternative approaches. Report the findings to the management with recommendations of acceptance or rejection of the proposal. So after the investigation is done, study is performed, is done, then a report is sent to the management. रिपोर्ट मैनेजमेंट को भेजा जाता है, जिसमें ये सजेशन होता है कि प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना है, प्रपोजल को एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट कर देना है। सो दीज आर द स्टेप्स ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट स्टेप इज रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन। दूसरा फेज है प्रॉब्लम स्टडी, रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी report, okay, and finally project approval। तो ये सारे स्टेप्स हैं। क्या सब स्टेप हुआ? रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, प्रॉब्लम स्टडी, रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट, प्रोजेक्ट अप्रूवल। So any analyst working on the preliminary investigation should accomplish the following objectives. Okay, should accomplish these objectives. What are these? Clarify and understand the project request, determine the size of the project. So it is necessary, it is important to understand कि what is the request, request है क्या, क्या प्रॉब्लम है, और प्रोजेक्ट का साइज क्या है, क्या हम उसको कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तभी हम आगे की ओर बढ़ते हैं। तो इसलिए प्रॉब्लम को सही से समझने के लिए, रिक्वायरमेंट्स को समझने के लिए, फिजिबिलिटी को समझने के लिए कि ये काम हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पूरे प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन को इन स्टेप्स में बांट दिया गया। रिक्वेस्ट क्लैरिफिकेशन, प्रॉब्लम स्टडी, रिक्वायरमेंट्स डिटर्मिनेशन, फिजिबिलिटी स्टडी, फिजिबिलिटी रिपोर्ट एंड प्रोजेक्ट अप्रूवल। So first phase is request clarification. Many a times requests are clearly stated. बहुत बार रिक्वेस्ट क्लियरली स्टेटेड होता है, क्लियर होता है। जब रिक्वेस्ट आया हम बातों को समझ जाते हैं, और अगर समझ जाते हैं तो these requests must be precisely understood what the requester originator wants. रिक्वेस्ट हम समझ गए तो अब हम उसको प्रिसाइजली माइक्रो लेवल पर समझना चाहते हैं कि रिक्वेस्टर ने ये रिक्वेस्ट क्यों दिया, क्या चाहिए उसको, क्या प्रॉब्लम है ना। और उसके बाद यदि ओरिजिनेटर ये अपने रिक्वेस्ट को क्लैरिफाई नहीं कर पाता है, जो रिक्वेस्ट कर रहा है रिक्वेस्टर,
अपने रिक्वेस्ट को, अपने प्रॉब्लम को ठीक से नहीं समझा पाता है, क्लैरिफाई नहीं कर पाता है कि व्हाट द प्रॉब्लम इज, in that case then problem clarification is highly needed. Okay, so before proceeding further, understanding the problem exactly is unavoidable. हम उसको बगैर प्रॉब्लम समझे आगे नहीं बढ़ सकते, और अगर हम ऐसा करते हैं तो जो आउटपुट हमारा मिलने जा रहा है, जो प्रोडक्ट हम बनाने जा रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हैं, वो सही से काम नहीं करेगा. दैट वुड बी एन इनकरेक्ट सॉफ्टवेयर. So it is one of the most difficult tasks of system analysts to develop a clear-cut, in-depth understanding of the problem being investigated. Without this, requirements cannot be clearly understood, and hence there will be lack in system accuracy. We are going to develop an incorrect software product that won't meet the user's requirements. तो जब हम प्रॉब्लम समझने की कोशिश करते हैं तो पहले क्या करते हैं, अगर प्रॉब्लम बड़ा है, इन दैट केस वी डिकम्पोज द प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर फ्रैक्शंस, बिकॉज वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ कॉम्प्लेक्स इज इट, व्हाट आर इट्स लाइकली कॉजेज, व्हाट इज इट, व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट दैट द प्रॉब्लम बी सॉल्व्ड. क्यों जरूरी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ऑर्गेनाइजेशन को क्या प्रॉब्लम है, व्हाट आर पॉसिबल सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम, अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस क्या सब हैं, what types of benefits can be expected once the problem is solved. अगर इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया गया तो यूजर को इससे क्या सब बेनिफिट होगा. और इन सारे मुद्दों पर जब हम सोचते हैं, समझने का प्रयास करते हैं, तो प्रॉब्लम हमको एक बार अगर हमें समझ में आ जाता है, ओनली देन वी गो अहेड, अदरवाइज नॉट. सो क्या सब क्वेश्चंस हो सकते हैं, वो अभी भी हम लोगों ने देखा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट इज द प्रॉब्लम, सो हाउ कॉम्प्लेक्स इज इट. ओके, सो सोर्सेज ऑफ प्रॉब्लम और अपॉर्चुनिटीज. क्यों प्रॉब्लम होते हैं, कारण क्या है, क्यों हमें नए सिस्टम की ओर जाने की ज़रूरत पड़ रही है. तो whenever we launch a new product, we intend to establish a new plant, or we are going to establish a new branch, or we are serving a new market, we are penetrating into a new market, or we are adopting a new process. Failure of an existing system, the current system is not capable of providing me the needed benefits, so the existing system fails, inefficiency of existing system, or any kind of structural error in the existing system. To understand the problem clearly, it is necessary to conduct the study or investigation in these steps. पहला क्या है, reviewing organizational documents. कंपनी के लेजर होंगे, जर्नल होंगे, रिसिप्ट्स होंगे, वाउचर्स होंगे, उन सबको हम स्टडी करेंगे. ऑन साइट ऑब्जर्वेशंस, कंडक्टिंग इंटरव्यूज. सो दीज आर 3 मोड्स. सो रिव्यूइंग ऑर्गेनाइजेशन डॉक्यूमेंट्स में हम क्या करते हैं, वी एग्जामिन कंपनी मैनुअल्स, प्रोसीजर बुक, रूल बुक, बिल्स, इनवॉइसेस, वाउचर्स, लेजर्स, जर्नल्स, रिसिप्ट्स, ऑर्डर बुक्स एक्सेट्रा. वी क्लोजली एग्जामिन इट, उसको हम गौर से देखते हैं. ऑन साइट ऑब्जर्वेशन, साइट पर जा कर के हम काम को देखते हैं, ये कैसे काम हो रहा है, रियल सिस्टम में लोग कैसे काम कर रहे हैं, आर दे रियली ऑनेस्ट टू देयर वर्क. वी कैन सी द ऑफिस इन्वायरमेंट, वी कैन सी द वर्क कल्चर, एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉइज, वर्कलोड, मेथड्स ऑफ वर्क, what are the various processes. And besides these two, we also conduct interviews to know the personal intention, personal view, merits of proposal, reasoning, whether they desire for a new system or not. And if they don't desire, what is the reason? Problems they face in the existing system. Okay, so these are the sources from where we get the information. Now, requirements determination. After we get the information from the users, from the system, after the problem is studied and requirements are understood, it is necessary to understand what exactly
आर द रिक्वायरमेंट्स दैट हैव टू बी कंप्लायंट, कौन कौन से रिक्वायरमेंट्स है जिनको हमको पूरा करना है यूजर के. सो इट इज एट द हार्ट ऑफ द सिस्टम एनालिसिस. Requirements are determined after getting the answers to some of these likely questions. What is being done? How is it being done? How frequently does it occur? What is the volume of transactions or decisions? How well the tasks are being performed? Does a problem really exist? If a problem exists, how serious it is? What are its underlying causes? So these are the questions that we attempt to answer. Now comes feasibility study, which is an outcome of the preliminary investigation in which it is determined that project is feasible or not. यानी इस feasibility study में हम ये चेक करते हैं कि ये प्रोजेक्ट करने लायक है या नहीं है. It is worth doable or not, to go or not to go. Okay, it is conducted in tight time constraints by a team of senior system analysts, and it culminates in a report which is called feasibility report. These are various types of feasibility study: economical, technical, operational, time, legal, management, social, and finally then we submit a report to the management for acceptance or rejection. So what we study in economical feasibility, we check whether there is economical benefit with the project or not. Economical benefit, monetary benefit कुछ है या नहीं है. जो हमारा एक्सपेंसेस हैं, जो हमारे कॉस्ट लग रहे हैं, उससे ज़्यादा हमारे बेनिफिट्स हैं या नहीं है. टेक्निकल फिजिबिलिटी में हम ये चेक करेंगे कि हमें वो टेक्निकल एबिलिटीज़ हैं कि नहीं, टेक्निकल कैपेबिलिटी है या नहीं, और टेक्निकल इक्विपमेंट्स हैं या नहीं सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट को करने के लिए. ऑपरेशनल फिजिबिलिटी में हम ये चेक करेंगे कि सॉफ्टवेयर बन जाने के बाद जब यूज़र के साइट पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो जाएगा तो यूज़र उसको यूज़ कर पाएगा या नहीं कर पाएगा. टाइम फिजिबिलिटी का मतलब ये हुआ कि विद इन द गिवन टाइम फ्रेम, टाइम स्पैन जो समय हमें दिया गया, वेदर वी कैन कंप्लीट द प्रोजेक्ट और नॉट. सॉफ्टवेयर हम बना सकते हैं कि नहीं दिए हुए समय सीमा के अंदर. लीगल फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि जो सॉफ्टवेयर हम बनाने जा रहे हैं क्या लीगली वो सही है. अगर इलीगल है वैसे केस में हम प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं. मैनेजमेंट फिजिबिलिटी का मतलब यह है कि वेदर देयर इज अ विलिंगनेस ऑफ द मैनेजमेंट टू अंडरटेक द प्रोजेक्ट और नॉट. मैनेजमेंट की इच्छा है या नहीं है प्रोजेक्ट करवाने में. अगर नहीं होगी तो वैसे केस में हम प्रोजेक्ट को रिफ्यूज़ कर देते हैं. सोशल फिजिबिलिटी में हम ये चेक करते हैं कि जो सोसाइटी है, सोसाइटी के जो लोग हैं जो हमारे सॉफ्टवेयर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्टेड हो रहे हैं, क्या उनके लिए हमारा प्रोजेक्ट एक्सेप्टेबल होगा या नहीं होगा. अगर उसमें प्रॉब्लम है देन वी स्टॉप द प्रोजेक्ट. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ फिजिबिलिटी स्टडी. देन आफ्टर वी सबमिट अ फिजिबिलिटी रिपोर्ट, a written report. Feasibility report is a written report submitted by the feasibility team. It should be well written, well presented document for a general audience, client, financial management, technical management, general management, etc. It should be short enough that everybody reads it. बहुत लंबा होगा तो पढ़ने में लोग भागता है, तो छोटा होना चाहिए जिससे कि लोग पढ़ें इसको. Long enough that no important topics are skipped. इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए कि इस इंफॉर्मेशन मिस कर जाए, इतना बड़ा भी नहीं होना चाहिए कि लोग उसको पढ़े नहीं. डिटेल्स कैन बी इंक्लूडेड यूजिंग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, जैसे टेबल्स हैं, फोटोग्राफ्स हैं, अनेक्सर्स हैं, वो सब हम लगा सकते हैं रिपोर्ट में. ये इसके कंटेंट्स होते हैं. फिजिबिलिटी रिपोर्ट जब हम बनाते हैं, कवर पेज होता है ऊपर में, उसके नीचे फ्रंट पेज, रिपोर्ट बॉडी फॉर्मेट, रिपोर्ट टेम्पलेट सेक्शंस, रेफरेंस पेज, अपेंडिक्स पेज, एट्सेट्रा. उसमें कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस हम लिखते हैं, कंक्लूजन्स लिखते हैं, रिकमेंडेशंस लिखते हैं. कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस मतलब जितना हमारा कॉस्ट लग रहा है उससे ज़्यादा बेनिफिट हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है. रिगरस एनालिसिस मेथड दैट वाज इम्प्लीमेंटेड टू एग्जामिन and evaluate the main proposal for cost benefit effectiveness and to demonstrate the technical feasibility, economic feasibility, time, social, operational, legal and management feasibility of the proposal. और अंत में एक समरी लिख देते हैं कंक्लूजन के हेड में, a summary of the work done, recommendations, a series of recommendations, practices and follow-up actions based on conclusions.
अंत में एक रेफरेंस पेज लगा देते हैं जिसमें जो जर्नल्स हम पढ़ते हैं, जिससे रेफरेंस लिए हैं, वेब पेजेस, वेब लिंक्स, पेरियोडिकल्स, रिपोर्ट्स, आर्टिकल्स, रिसर्च पेपर्स, बुक्स, ये सब जहाँ से भी हमने कंटेंट्स लिया है, जो समझा है, उसके बारे में लास्ट में रीडर की सुविधा के लिए हम लगा देते हैं। उसके बाद अपेंडिक्स पेज में हम जो कुछ भी नक्शा है, मैप है, फोटोग्राफ्स हैं, टेबल्स हैं, उन सबको भी हम अनेक्सर के रूप में अपेंडिक्स पेज में लगा देते हैं। एंड then it enters into the next phase, that is the project approval. This feasibility report is submitted to the management. Management goes through the feasibility report, and normally it happens, actually it all depends upon the management, but normally it happens whatever is written in the project feasibility report, the management approves. अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में टीम ने कहा कि ये प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने लायक नहीं है तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, नहीं लिया जाता है। और अगर फिजिबिलिटी रिपोर्ट में है कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट किया जा सकता है, वैसे केस में मैनेजमेंट अप्रूवल दे देता है। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रोजेक्ट अप्रूवल। सो आज हम लोगों ने ये समझा प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन डिटेल में। तो बस इतना ही आज के लिए। थैंक यू।